Okay, so let's go ahead with more questions on electrostatics. Question number 21st. Three particles, each having a charge of 10 microcoulomb, are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter. The electrostatic potential energy of the system is. So आपके पास basically एक equilateral triangle है. So you have an equilateral triangle. Okay, और इसके तीनों vertices पे you have equal charge. I call this number 1, I call this number 2, and this is number 3. Okay, let's say distance is A. तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू K, मतलब 1/4πε0, उसको K बोल सकते हो आप, Q1 Q2 by R12 square plus Q1 Q3 by R13 square plus Q2 Q3 by R23 square. So this is what I mean, you take all the combinations. याद रखना यहाँ पे एक जनरल गड़बड़ होती है जो मैंने इंटेंशनली की है, R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में आता है, नीचे यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस आएगा, तो इट इज नॉट स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है कि इट इज नॉट स्क्वायर. ओके गुड. तो एज यू नो यहाँ पे चार्जेस तो सब सेम ही है, तो के Q square by distance A plus Q square by distance A, क्योंकि Q1, Q2, Q3 सब इक्वल चार्जेस है, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, और सब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड्स भी सेम होंगे, प्लस Q square by A. ओके, तो यू विल हैव 3K Q square by A. दिस इज इक्वल टू 3 और K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 है. Q square is 10 microcoulomb, 10 × 10 power minus 6 coulomb the square upon A. A is 10 centimeter, 10 × 10 power minus 2 meter. Okay, so this is quite simple thing. 9 to the 27. बाकी तो सब 10 का power adjustment है ना. Only this will give you some number 27. बाकी सब 10 के powers का adjustment ही हो रहा है. So it is going to be 27 joule. Option number C straight away. Okay, तो simple question था. इसमें कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल ही है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय. तो इजी है ये भी. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इफ यू रिमेंबर उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम that is equal to energy density, that is equal to half epsilon 0 E square. Okay, and you also know कि आपके पास सेपरेशन D दिया है प्लेट्स का, एरिया A दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, तो यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. तो अगर कैपेसिटर के प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस अगर D है, तो आई कैन राइट डाउन electric field E is potential difference per unit length. So therefore you will have energy density as energy per unit volume मतलब energy density as half epsilon 0 E की जगह पे V by D the square. So you will have 1/2 epsilon 0 V square by D square. Option number A. So simple questions है, extremely simple questions as you can see. Next question, question 23rd. If the distance between the plates of a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled, the new capacity will be. Easy question है. As you know, C is equal to A epsilon 0 by D. Okay, so C is inversely proportional to D. Therefore, C dash by C is equal to D by D dash. Okay, therefore you will have C dash equal to D by D dash into C, and you have distance between the plates as doubled. So therefore you have D by D dash equal to half.
and therefore you have c dash equal to c by 2 क्योंकि d by d is half, and therefore you will have c dash equal to c, that is 10 microfarad by 2 is equal to 5 microfarad. आपको मिल गया c dash has 5 microfarad. Okay, option number A खत्म. Next question. In a parallel plate capacitor, the capacity increases if, of course, वापस से वही है, C is equal to A epsilon 0 by D. Okay, so C is proportional to A and C is inversely proportional to D. ये तो पता है हमको. Area of the plate is decreased. Capacity increases if area of plate is decreased. No, क्योंकि area के साथ directly proportional है. Distance between the plate increases. अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही नहीं है. एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यस. तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे आप एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाओगे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस स्मॉल r is. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside a charge sphere. If you remember, हमारे पास एक चार्ज स्फीयर था जिसके रेडियस को हमने कैपिटल R लिया था. Just a minute, I'll just copy this. So normally what you do is चार्ज स्फीयर, इसका रेडियस कैपिटल R लेते हो, गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल r लेते हो. So you have this as capital R, this as small r, the charge is over here. Okay, फिर आप गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो. अगर आपको याद होगा, गॉस लॉ वाज इंटीग्रेशन E bar dot ds bar flux through Gaussian surface. This is flux through Gaussian surface equal to charge enclosed by epsilon 0. तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. therefore you can have E outside. मैंने बताया था कि E outside क्यों ले सकते हो, इंटीग्रेशन की E कांस्टेंट है. E डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे. गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, or distance of any point on the Gaussian surface is constant from center, इसलिए ds. और थीटा की वैल्यू 0 आती है. क्यों 0 आती है? बिकॉज यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. तो अगर मैं यहाँ पे एक एरिया का स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ ds, तो ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों सेम ही आते हैं. सो E and ds are in the same direction. Therefore, you will have theta equal to 0. You will have theta equal to 0, which implies cos theta, that is cos 0 equal to 1. तो चार्ज एनक्लोज को मैंने Q कैपिटल Q मान के रखा है अपॉन एप्सिलॉन 0. Therefore, इंटीग्रेशन ऑफ ds. तो हमने ऐसे गॉसियन सरफेस को we can assume to be made up of small elements. So we can assume this to be made up of small length elements. और फिर हम सब पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर मिलेगा. तो दैट इज 4 पाई कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन स्फीयर का है, गॉसियन सरफेस का है वो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आई हैव टोल्ड यू, वी हैव रिवाइज्ड how to find out electric field outside a charge conducting sphere. Next time, I mean in exam, you do not have to do all this. आपको करना ही नहीं है, ये आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है because you should already know directly this formula. अब there are two ways of solving this. हमको देखो आंसर में दिया है सिग्मा सिग्मा सिग्मा. तो सिग्मा क्या होता है पता होना चाहिए. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया. therefore चार्ज Q इज सिग्मा, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर. तो सिर्फ आप Q की जगह पे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डाल दो. therefore E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
sigma 4 pi r square upon small r square. Cancel, cancel. Therefore, E is equal to sigma r square upon epsilon 0 r square. तो ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल था ये, तो थ्योरी में भी हमने डिराइव करके ही रखा है। थ्योरी में भी हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यू गेट दिस आउटसाइड, देन ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन इनसाइड तो जीरो ही हो जाता है। सो यू ऑलरेडी नो ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, the energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plates is E. Energy required to charge a parallel plate condenser. आपको पता होगा energy required to charge a capacitor. Energy required to charge a capacitor, if you remember, is nothing but CV square. Yeah? Right. So formulas you need to know first of all. So energy is half CV square. ये पता होना चाहिए. Right? Energy required is half CV square. Okay. अब confusion क्या होता है? ये energy E है, electric field भी E है. So what I'll say is energy required को मैं usually note करता हूँ. That is half CV square. But as you know, you already know, E is equal to V by D. Therefore, you will have V is equal to E into D. And therefore, you can write U is equal to half C E D square. Therefore, U is equal to half C E square D square. Okay, इतना तो आपको पता होना चाहिए. Now, as you can see, चारों ऑप्शन में C कहीं नहीं दिख रहा है. So therefore, you can say C is equal to A epsilon 0 by D. Therefore, you will have U equal to 1/2 A epsilon 0 by D. E square D square. Cancel, cancel. Therefore, you will have U equal to half A epsilon 0 E square D. So half epsilon 0 A E square D, option number D. This is how you can get this particular answer. Okay. एक चीज याद रखना, in some books you have given answer C, लेकिन उस केस में हाफ उन्होंने लिखा नहीं होगा फिर, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर एंड नॉट CV स्क्वायर. ओके, तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आएगा. इट्स अ सिंपल थिंग, कुछ नहीं है. हमने हाफ CV स्क्वायर से स्टार्ट किया, बट E इज V by D, तो V इक्वल टू ED को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हाफ C ED का स्क्वायर, तो U इक्वल टू हाफ C E स्क्वायर D स्क्वायर. C इज epsilon 0 by D. सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू गेट योर आंसर. 27th, a parallel plate condenser with dielectric constant 2. पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, विथ ऑयल, और ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है. so you have oil over here whose dielectric constant K is 2. Okay, between the plates has capacitance C. If oil is removed, then capacitance of capacitor becomes, मतलब जब आपने इसमें ऑयल भर के रखा था तब इसका कैपेसिटी C था, और आपको पता है when you have a dielectric medium, C is K A epsilon 0 by D. ओके, हमने ऑयल को रिमूव कर दिया, तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल between the plates. Of course, if oil is removed, you will have C dash equal to A epsilon 0 by D. Therefore, you will just divide these two
A epsilon 0 by D upon K A epsilon 0 by D. Cancel, 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 cancel. So you will have C dash equal to C by K and K की वैल्यू 2 दी है तो C by 2, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। या फिर अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। तो कैपेसिटेंस इन एयर इज C मीडियम बाय K। सी मीडियम को सी बोला है, के की वैल्यू को 2 बोला है, तो डायरेक्टली भी हो जाएगा आपका आंसर। तो शॉर्टकट मेथड्स भी एग्जिस्ट करते ही है, तो यू कैन एनी टाइम यूज शॉर्टकट मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the corner of a cube of side A, the electric flux through the cube is। तो हमारे पास एक चार्ज है which is kept at the corner of a cube. So it's something like this. This is the cube which we have. इसके एक कॉर्नर पे, so at one of the corners you have a charge और क्यूब का साइड A है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। तो एज यू ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 बाय गॉस लॉ। ये गॉस लॉ है, लेकिन अब बिकॉज ये एक कॉर्नर पे है तो हमको चार्ज अगर एनक्लोज करना है, चार्ज को क्लोज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे चार्ज को एनक्लोज करना है। देखो, चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मुझे एक क्यूब नीचे रखना पड़ेगा। नीचे से क्लोज हो गया, एनक्लोज हो गया। मुझे एक क्यूब को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि साइड से भी इसको हमको एनक्लोज करना है। सो तभी यहाँ साइड से भी हमने इसको एनक्लोज कर दिया मोर और लेस। फिर एक क्यूब को हमको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू एनक्लोज इट। आपको चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना है। इट शुड नॉट बी ओपन टू द सराउंडिंग, राइट। तो अभी ऐसा करने से क्या हो गया कि फ्रंट के साइड से तो पूरा का पूरा एनक्लोज हो गया, लेकिन बैक साइड पे बाकी है। तो जैसे ये 4 क्यूब है, अब वैसे के वैसे 4 क्यूब आपको पीछे रखने पड़ेंगे। सो यू हैव टू हैव सेम स्ट्रक्चर इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आपको 4 क्यूब पीछे भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। सो आई जस्ट टेक दिस थिंग्स, यू विल हैव टू पुट इन द बैक ऑल्सो। आपको पीछे भी ऐसे क्यूब्स अरेंज करने पड़ेंगे। मैं वापस बता रहा हूं, होता क्या है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज पहले यहाँ पे था, एक ही क्यूब के कॉर्नर पे था। एक क्यूब के कॉर्नर पे था, मतलब इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो इस साइड से तो एनक्लोज है, लेकिन नीचे से, पीछे से, आजू से, बाजू से वो ओपन था। तो हमको उसको क्लोज करना पड़ा, हमको उसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो टू द लेफ्ट एक क्यूब रखेंगे, नीचे 2 क्यूब रखेंगे, इसके पीछे 4 क्यूब और रखेंगे। इमेजिनेशन, यू हैव टू इमेजिन। ऑफ कोर्स, अगर आपके घर में एक बॉक्स है
क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसका एक कॉर्नर आप इमेजिन करो, एक कॉर्नर जब आप बात करते हो वहां पे चार्ज लगा दिया, उस चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना है, तो उस चार्ज के नीचे, उसके बाजू में और वापस नीचे और पीछे 4 और क्यूब लगेंगे एंड देन इट विल बी इनक्लोज्ड। तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज को हमने एनक्लोज कर दिया। तो जिस क्यूब के कॉर्नर पे वो चार्ज था, उसी साइज के हमने कितने क्यूब यूज कर लिए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 पीछे का और 8, तो 8 क्यूब लग गए हमको चार्ज को एनक्लोज करने में। करेक्ट, 8 क्यूब लग गए। तो यू हैव टू नो दिस। अगर ये नहीं समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यू हैव यूज्ड 8। तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, अब वॉट एवर फ्लक्स इज कमिंग थ्रू दिस चार्ज, ये पहले क्यूब से, मतलब मान लो यहां से फर्स्ट क्यूब से, नीचे के सेकंड क्यूब से, पीछे के थर्ड क्यूब से, और नीचे यहाँ पे फोर्थ क्यूब से, फिफ्थ क्यूब से, सो फोर्थ, सिक्स्थ क्यूब से, सेवेंथ क्यूब से, और पीछे 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 एट्थ क्यूब से। राइट, तो आई विल बेटर नंबर इट, मैं नंबर दे देता हूँ। ये क्यूब नंबर 1 है, ये क्यूब नंबर 2 है, दिस इज क्यूब 3, दिस इज क्यूब 4, लेट अस से क्यूब नंबर 5, क्यूब नंबर 6, क्यूब नंबर 7, और इसके पीछे का एक क्यूब नंबर 8। ओके, तो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब में डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर यू कैन से फ्लक्स, है ना, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब is total flux divided by 8. But what is total flux? It is charge enclosed upon 8 epsilon 0. What is charge enclosed? Is Q upon 8 epsilon 0. तो आ गया Q by 8 epsilon 0, ऑप्शन नंबर डी। राइट, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन तो आपको यहाँ लगने ही वाला है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, बट यू विल हैव टू इमेजिन। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब लग गए हमको, और टोटल फ्लक्स जो है वो 8 क्यूब में डिवाइड हो गया, इसलिए फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब विल बी 1/8 ऑफ टोटल फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in bringing an electron towards another electron, the electrostatic potential energy of the system. You already know कि क्या होगा, सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, R not R square but R। पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है। आप therefore you can write this as E square by R। in bringing an electron towards another electron, तो डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। राइट, सिंपल। so if the distance is decreasing, potential energy will increase, so it increases। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, अभी देखा था आपने, फ्लक्स इज E into ds, इलेक्ट्रिक फील्ड into ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज into ds, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, तो नाउ इट डिपेंड्स कि आपको न्यूटन में लिखना है कि वोल्ट में लिखना है। इट्स अप टू यू। अगर आपको वोल्ट में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू ds। ओके, B मतलब वोल्टेज इज इन वोल्ट, D मतलब डिस्टेंस इज इन मीटर, ds इज एरिया व्हिच इज इन मीटर स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्लक्स इज इन वोल्ट मीटर, तो फ्लक्स इज E into ds, but E is potential difference upon distance। potential difference is measured in volt, distance in meter, और ds तो एरिया ही है मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर आ गया। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinite
line charge produce a field of, हमारे पास एक infinite line है, okay, charge line है, it produces an electric field of 7.12182 into 10 power 8 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. So distance of this point P, linear distance of course, shortest distance मतलब perpendicular distance मतलब, this is R equal to 2 centimeter. The linear charge density is, अगर आपको याद होगा आपने गॉस लॉ यूज करके, मैं अभी पूरा नहीं सॉल्व करके देने वाला हूं, बट आई जस्ट टेल यू कि आप क्या करते हो, आप एक गॉसियन सिलेंडर लेते हो और इस गॉसियन सिलेंडर में आप कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो देखते हो, फिर आप फ्लक्स की बात करते हो, मतलब इन शॉर्ट व्हाट यू डू इज यू अप्लाई गॉस लॉ हियर। तो ये आपने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, गॉसियन सिलेंडर जिसका लेंथ L है मान लो, so the length of this cylinder is L. फिर आप वही करते हो E bar dot ds bar का इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये गॉसियन सिलेंडर में, जीसी में, गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो देखते हो, प्रोवाइडेड यू शुड नो दैट यहाँ पे हम लैम्बडा को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लाइन के ऊपर चार्ज है इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस टर्न्स आउट टू बी E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये हमने गॉस लॉ अप्लाई करके फॉर्मूला फाइंड करके रखा था, थियरी क्लासेस में हमने ये डिटेल में लिया है। वी हैव दिस, ओके, सो वी ऑलरेडी नो दिस, तो आपको पता होना चाहिए। What I can do is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r। सिर्फ मैंने 2 एडजस्ट किया, हमको चाहिए r, ओके सॉरी हमको चाहिए लैम्बडा, वी सपोज टू फाइंड लैम्बडा। तो लैम्बडा फाइंड करना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2e, ओके 2e e by 2, lambda is equal to e by 2 4 pi epsilon 0 r। यहाँ पे there is a possibility of error, so what you should do is put values here only. What is the value of E? 7.182 into 10 power 8. 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9. 2 into lambda, find करना है lambda, upon distance is 2 centimeter, 2 into 10 power minus 2 meter, cancel, okay। तो ये आपको मिल जाएगा 7.182 into 10 power 8, ओके, into 10 power minus 2, क्योंकि 10 power minus 2 मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 9 into 10 power 9, that is equal to lambda, ओके। तो you will have lambda is equal to, जो भी है उसको सॉल्व करो, solve this whatever you get, जो भी आंसर मिलेगा आपको, okay। So I'll do it on calculator because we don't have that much of time to keep doing everything on using log table. 7.182 divided by 9, 0.798, 0.798, और ये आ गया आपका 10 पावर प्लस 6 ऊपर, और यहाँ से 10 पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.798 इंटू 10 पावर -3, मतलब 7.98 इंटू 10 पावर -4 कूलम पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। So this is how you are supposed to solve this particular question. Next question, question 32. If the distance between the plates of parallel plate capacitor is half and the dielectric is doubled, then the capacity will be, again a very simple question, you already know, C is equal to K A epsilon 0 by D, so C is proportional to K by D। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है,
सिर्फ डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक को डबल कर रहे हो, ऐसा है। तो therefore you will have C dash by C equal to obviously K dash by D dash D by K। तो आपको मिल जाएगा C dash by C equal to K dash by K और D by D dash। बट आपको बताया क्या है, आपको बताया है कि डिस्टेंस को हाफ किया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डबल किया। तो आपको मिल जाएगा D by D dash equal to 2। यहाँ से you will have D by D dash equal to 2 and you will have K dash by K also equal to 2. Therefore you will have C dash by C equal to 2 into 2, that is 4. Therefore C dash equal to 4 times of C, increases by 4 times, option number B। तो आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो। Next question, question 33. If 4 into 10 power 20 EV energy is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 points, then what will be the potential difference between them? Suppose हमको A point से B point तक एक charge को move करना है। So I have a charge which I want to move from A to B. Okay, from A to B. All right. तो कितना एनर्जी लगा? एनर्जी that was required was 4 into 10 power 20 EV। ओके, चार्ज कितना है? चार्ज आपके पास है 0.25 कूलम और आपको पूछा है, बाय द वे दिस एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो दिस इज वर्क डन, तो वर्क डन इज दिस मच। ओके, एंड दे आर आस्किंग मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली अ जोक। कैसे जोक? तो आपको पता है वो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, but then this EV has to be converted to joule। तो आपको ये पता होना चाहिए सॉरी। तो what you should know is, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस एज वर्क डन बाय चार्ज लिखते हो तो यहाँ पे ये वर्क डन EV में नहीं जूल में चाहिए। तो you have to write this in terms of joule, and from EV to joule you have to multiply by 1.6 into 10 power minus 19। This is simple क्योंकि 16 4 is 64। ओके, तो मैं इसको 1.6 into 10 power minus 19 को मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट डाउन, एक पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे 20 कर देंगे। तो ये और ये कैंसल आउट, तो 64 जूल इज वर्क डन। तो वर्क डन 64 जूल है, तो 64 जूल है और चार्ज है 0.25 कूलम का। 0.25 मतलब 25 by 100 बाय 100 बाय 100 मतलब 1/4। ये 4 ऊपर जाएगा, 64 into 4 is 256। तो 256 वोल्ट आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन those 2 points। okay, so simple। Next question, a condenser has a capacity 2 microfarad and is charged to 50 volt। कैपेसिटी आपको दिया है 2 माइक्रोफैरड मतलब 2 × 10⁻⁶ फैरड। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वोल्ट। आपको एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV²। तो 1/2 C is 2 × 10⁻⁶, V² V is 50 मतलब 5 × 10 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2 तो कैंसिल हो गया। 10⁻⁶ into 25 into 10⁻+2, तो आपको मिल जाएगा ये 25 into 10⁻⁻4 जूल ऑफ एनर्जी। तो therefore you will have U equal to 25 10⁻⁴ जूल। अभी ऐसा तो दिख नहीं रहा हमको। So if you don't see such an answer, तो अर्ग में कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि अर्ग में भी दिया है। तो you know how much is 1 joule to अर्ग। तो 25 into 10⁻⁴ जूल से अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिंस 1 जूल ये पावर 4 है,
is 10 power 7 erg. ये पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर. You should know how to convert from joule to erg. ओके अगर नहीं आता है तो आपको 11th का चैप्टर 1 डायमेंशनल एनालिसिस से भी कन्वर्ट करते आता है. तो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. So this is 25 into 10 power 3 erg. Option number D. तो ऐसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो. Next question, 35th. A capacitor of 20 microfarad is charged up to 500 volt. Is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged up to 200 volt. Then the common potential difference is. It's a good question, by the way. ओके तो सपोज मान लेते हैं कि पहला कैपेसिटर जो है, मैं दिखाई देता हूँ डायग्राम में. तो वी हैव अ कैपेसिटर, लेट अस से ओवर हियर. We have capacitor and these two are in parallel. पैरेलल बोला है ना? यस. ओके तो पहले का कैपेसिटी जो है वो C1 मान लेते हैं, दूसरे का C2 मान लेते हैं. ओके तो जो कैपेसिटर है पहला वो 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटी का है और उसको चार्ज किया है अप टू 500 वोल्ट. दूसरा जो है वो 10 माइक्रोफैरड का है, उसको चार्ज किया अप टू 200 वोल्ट. कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे ये बताना चाहिए. सबसे पहले हमको वैल्यूज क्या दिए है. हमको C1 दिया है दैट इज 20 माइक्रोफैरड. हमको V1 दिया है 500 वोल्ट. हमको C2 दिया है 10 माइक्रोफैरड और हमको V2 भी दिया है 200 वोल्ट का. ओके तो इसका मतलब बिफोर कनेक्टिंग इन पैरेलल, ओके टोटल चार्ज क्या होगा. तो आप लिख सकते हो दैट टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग या फिर बिफोर कनेक्टिंग इन पैरेलल. ओके सो टोटल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज, that is charge on capacitor 1 plus charge on capacitor 2. मान लो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है. तो आपको ऑलरेडी पता है, you already know, what do you know is Q is CV, C is Q by V, तो Q is CV. ये तो पता होना चाहिए आपको, बेसिक्स पता होना चाहिए. तो C1 V1 plus C2 V2 ये टोटल इनिशियल चार्ज हो गया. राइट करेक्ट. अब कॉमन पोटेंशियल पूछा है. ओके तो यू शुड नो टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल, मतलब टोटल फाइनल चार्ज. इनिशियली कैपेसिटर C1 अलग था, C2 अलग था, फिर बाद में हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है. ये समझना इंपॉर्टेंट है. अगर you are getting confused, so I'll have to show two diagrams over here. So let me do that. ये फाइनल सिचुएशन है. ओके दिस इज फाइनल. इनिशियल क्या था, इनिशियल ऐसा था, दोनों के दोनों अलग अलग से रखे हुए हैं. So both of these are kept separately. So you have something like this. This is initial situation. This is final situation. तो टोटल फाइनल चार्ज कैसे निकालोगे आप. C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, क्योंकि पहले ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्टेड था और ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्टेड था. तो बाद में हमने पैरेलल में लगा के दोनों को कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया. तो यू कैन हैव टोटल फाइनल चार्ज एज C1 प्लस C2 इंटू V एंड देन यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. So using law of conservation of charge, according to law of conservation of charge, total initial charge equal to total final charge.
Therefore, you will write down C1 V1 plus C2 V2 equal to C1 plus C2 into V. Okay, so now यहां से आपको मिलेगा V. Therefore, you will have V equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. मैं अगर डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता तो भी चलता. मैं बोलता कि चलो दो कैपेसिटर थे, पहला 20 माइक्रोफैराड और उसको हमने इनिशियली 500 वोल्ट से चार्ज किया है, दूसरे को 200 वोल्ट से चार्ज किया है. फिर कॉमन पोटेंशियल क्या है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते तो भी चलता. इट्स ओके. सिर्फ फॉर्मूला कहाँ से है दैट यू शुड नो. C1 V1. बाय द वे, हमको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. माइक्रोफैराड से फैराड में जाओगे ऐसा करने की जरूरत नहीं है. फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो. क्यों नहीं है? क्योंकि माइक्रो 10⁻⁶ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकलेगा. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए जरूरत नहीं है. तो C1 is 20 into V1 is 500 plus C2 is 10 and V2 is 200 upon 20 plus 10. ओके, तो यहाँ से आपका 2 into 5 is 10, मतलब 20 into 500 is 10,000. नहीं, it is 10,000. या फिर अगर आप if you want you can actually take out 1 and 2 10 power 3 common. तो 10 power 3 common निकाल लो into 2 into 5 बचा यहाँ पे अंदर, तो 10 यहाँ पे बचेगा प्लस यहाँ पे सिर्फ आपका 2 बचेगा बाय 30. तो ये आपका आ गया 12 बाय 30 into 10 power 3. 10 power 3,000 cancel 1 the 4 the 400 volt of potential difference. Common potential is 400 volt. तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था which is a very very simple question, extremely simple question. तो बहुत इजी क्वेश्चंस में आता है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The capacitance between the points A and B in the given circuit will be. easy है, ये दोनों पैरेलल में. आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर कैपेसिटर, you know that it is just addition, है ना. तो 1.5 और 1.5 पैरेलल में मतलब टोटल 3 माइक्रोफैराड हो गया. मतलब अब ये 3 और ये 3 सीरीज में आ गया. ओके, तो व्हाट यू कैन से इज 1.5 microfarad and 1.5 microfarad are in parallel. Therefore, let's say C dash, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको C dash बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, इसको मैं C3 बोल रहा हूँ. तो C dash is 1.5 microfarad plus 1.5 microfarad, that is 3 microfarad. Okay, now C1, C dash and C3 are in series. आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C/N. अगर सारे के सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे C1 3, C dash भी 3 और C3 भी 3, तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड अपॉन N भी 3, तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्विवेलेंट. ऑप्शन नंबर A. This is how you can solve this particular question. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने अभी सॉल्व किया था. C/2 आंसर आता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है. इफ यू रिमेंबर, इससे पहले के सेट में था वो, but today only we have done this. 38. A 700 picofarad capacitor is charged by a 50 volt battery. The electrostatic energy is, ये भी सिंपल है, half CV square, half
C is 700 picofarad. Pico मतलब कितना 10 power minus 12 ये पता होना चाहिए. V square is 50 का स्क्वायर मतलब 2500 आएगा. तो ये आपको सॉल्व करना है. 1 जा एंड 350 जा, 350 into 25 ये सब सॉल्व करो आप. तो once you solve this you will get 8.7 into 10 power minus 7 जूल. पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये. ओके, simple questions as you can see, quite simple questions. Now in the given figure, 3 capacitors each of capital 6 picofarad are connected in series. टोटल कैपेसिटेंस अभी मैंने बताया, सीरीज में जब होता है ना तो उस केस में you have C by N. 6 picofarad, pico मतलब 10 power minus 6 minus 12 सॉरी, अपॉन टोटल कितने हैं 3 है. तो 2 into 10 power minus 12 farad is the equivalent capacity of the combination. हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया ये सेट खत्म. So today we have solved 19 questions in a period of 46 minutes. तो CAT के क्वेश्चन इतने फास्ट होते हैं. So we'll stop here for today and we'll solve some more questions which did not appear in CAT क्योंकि CAT में इतने ही questions आए हैं deleted syllabus, reduced syllabus के according. So I will put more questions. I'll make some questions and we'll do that. Okay.